So that which act is more killed bad? more. Which act is more bad? Same. Which act is more bad? Hitler. Hitler. The New York Twin Tower, more than 3,000 people were killed. Is that a more bad act or Hitler's act? 6 million Jews. In my opinion, it's just, it doesn't matter how many died. Oh, it doesn't matter. I mean, Whether you kill one or whether you kill 6 million, it's the same. no, I mean, I'm just talking about the right, about... No, both are wrong for sure. both- Can I blame Christianity for that? No, you don't. If I want to take advantage of Hitler's wrong act, I will say Christianity says that kill 6 million Jews. Nowhere does Christianity say that. I have read the Bible. I'm a student of comparative religion. I will say that Hitler is a bad example of a Christian. He's a Agree. bad example. Bad example. He may not be a practicing Christian also. I condemn it. More than 50 people killed in the London tube bomb blast. I condemn it. More than 180 people killed in Bombay, the city where I stay, of serial train bomb blast. I condemn it. But in the same breath, I also condemn the thousands of innocent Afghanis killed in Afghanistan. I also condemn the thousands of Iraqi killed, the thousands of people killed in Palestine. I'm not trying to drift the topic. You cannot say that, okay, it was just collateral damage. What collateral damage? You are sending cluster bombs in Afghanistan, cluster bombs, to catch one man. Cluster bomb, and the bomb diffuses and multiple bombs comes. And thousands of innocent Afghanis have been killed. For what? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब समझा जाता है। कुरान पाक अल्लाह ताला के अहकामात और दीन को समझे बगैर कोई भी दुनिया में उठकर मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कह दे, उसकी वाह वाह शुरू हो जाती है और लोग यकीन करते हैं कि दुनिया में जो भी बम धमाके हो रहे हैं वो मुसलमान ही कराते हैं। ऐसे में मुसलमान भी अपने आप को क्लियर करने की कोशिश नहीं करते। इसी से मुतालिक एक कोरियन नौजवान ने भी शिकायत की। प्यूनिंग जानून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त हैं, उनमें लड़कियां भी हैं जो हिजाब करती हैं और जब मैं उनके साथ सफर करता हूं तो बसों में लोग उन्हें घूरते हैं और उनकी तरफ देखकर अजीब से इशारे और बातें करते हैं। जब भी कोई मेरे दोस्तों को दहशतगर्द कहे तो मुझे बुरा लगता है, मगर ISIS जो दहशतगर्द तंजीम है वो भी खुद को मुसलमान कहती है, तो फिर आप में और ISIS में क्या फर्क है? कौन मुसलमान है और कौन नहीं? और कोरियन मीडिया भी इस तंजीम को दिखा रहा है और उनको मुसलमान कह रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ISIS और आप में क्या फर्क है और कोरियन लोगों के जहन बदलने के लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है कि वो मुसलमानों को दहशतगर्द न समझें? First question is, can you give a correct direction, correct definition, the difference between IS and you? And the second, what will be the first priority to change Korean people's mind that Islams are not terrorists? नाजरीन, इस नौजवान के सवाल पर हस्बे मामूल डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो तालियां बजाई हैं, मगर हॉल में बैठे लोग भी अपने हाथ ना रोक सके। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अगर मेरे और ISIS के दरमियान फर्क आप पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि ISIS किस बला का नाम है। मैं जाती तौर पर इस तंजीम के बारे में कुछ नहीं जानता। जो मुझे पता है वो मीडिया से पता चला। कुरान पाक कहता है कि जब भी कोई खबर मिले तो उसको आगे फैलाने से पहले देखो कि सच है या नहीं। मैं सिर्फ ISIS के बारे में वही कुछ कह सकता हूँ जो कुछ मीडिया कह रहा है, और जो मीडिया उस तंजीम के बारे में बताता है कि वो करती है, मैं उसको तो इस्लाम बिल्कुल नहीं समझता। मीडिया कहता है कि उस तंजीम ने 130 लोगों को पेरिस में मारा है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं ये 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 130 लोगों का कत्ल हराम है और गुनाह है, ये इस्लाम में शामिल नहीं। I know what the media says. Yesterday's media said that the ISIS has killed 139 people in the Paris attack. Maybe, maybe not. What I can tell you, whoever has killed those 139 people, it is prohibited. It is not part of Islam. That I can tell you. Who did it, I don't know. डॉक्टर साहब ने बताया कि कुरान पाक सूरह माइदा में कहता है कि इसी सबब से हमने बने इस्राइल पर लिखा कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले के बगैर या जमीन में फसाद के अलावा कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्शी। और हमारे रसूल इनके पास खुले हुक्म ला चुके हैं, फिर भी उनमें से बहुत लोग इसके बाद भी जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। इस्लाम में तो ये सख्ती से हिदायत की गई है कि किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं करना, क्योंकि एक
एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। पेरिस में 130 लोग मारे गए, ये तो इंसानियत को 130 मर्तबा कत्ल करने के बराबर हुआ। बेगुनाहों को कत्ल करना इस्लाम की तालीमात नहीं, फिर चाहे वो खुद को ISIS कहे या जो मर्जी। जिसने भी ये किया है वो नाम से मुसलमान बेशक कहलाते हों, मगर वो बाअमल मुसलमान हरगिज नहीं। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जलाया। मुझे बताएं कि क्या हिटलर का जुर्म पेरिस में 130 लोगों को मारने से बड़ा है या उससे छोटा? उस नौजवान ने जवाब दिया कि हिटलर का काम ज्यादा बुरा था। डॉक्टर साहब ने पूछा कि 9/11 बुरा था या हिटलर का 60 लाख यहूदियों को मारना? इस पर पियोंग जानून ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक को मारें या ज्यादा को, वो तो बराबर हैं। So which act is more bad? Which act is more bad? Same. Which act is more bad? Hitler. The New York Twin Tower, more than 3,000 people were killed. Is that a more bad act or Hitler's act? 6 million Jews. In my opinion, it's just, it doesn't matter how many died. Oh, it doesn't matter. I mean, whether you kill one or whether you kill 6 million, it's the same. no, I mean, I'm just talking about the right, about... No, both are wrong for sure. डॉक्टर जाकिर नाइक ने पियोंग से कहा कि 60 लाख यहूदियों को मार देना और 3000 या 130 लोगों को मारना अलग अलग चीजें हैं। एक शख्स 2 गुनाहगारों को कत्ल करता है और एक शख्स एक अच्छे इंसान का कत्ल करता है, तो दोनों में ज्यादा बुरा वो है जो बेगुनाहों को मारे। हिटलर ने 60 लाख लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो यहूदी थे और उनको मारने वाला हिटलर ईसाई था। मुझे बताएं कि क्या मैं हिटलर के इस जुर्म पर पूरी ईसाइयत को बुरा कह सकता हूँ? उस नौजवान ने जवाब दिया कि नहीं, किसी शख्स के जुर्म पर उसके मजहब को बुरा नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मैंने कोई फायदा उठाना हो तो मैं कहूंगा कि ईसाइयत में लिखा है कि 60 लाख यहूदियों को कत्ल करना चाहिए, फिर उस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दूंगा। मगर मैंने बाइबल पढ़ी है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि कत्ल करना अच्छा है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हिटलर एक बुरा ईसाई शख्स था, मगर मैं पूरे मजहब को बुरा नहीं कह सकता। Can I blame Christianity for that? No, you don't. If I want to take advantage of Hitler's wrong act, I will say Christianity says that kill 6 million Jews. Nowhere does Christianity say that. I have read the Bible. I'm a student of comparative religion. I will say that Hitler is a bad example of a Christian. He's a bad example. Bad example. He may not be a practicing Christian also. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि बर्तानिया में आयरिश रिपब्लिक आर्मी नामी एक तंजीम है जिसने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया है। क्या कोरियन मीडिया ने उस तंजीम को दहशतगर्द कहा है? यही मेरा मीडिया से एतराज है कि ये लोग जो भी करते हैं वो बुरा है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। मगर जब कोई मुसलमान ऐसा काम करे तो उसके मजहब का नाम लेकर उसको बुरा भला कहा जाता है और दूसरे मजहब का करे तो उसको दहशतगर्दी नहीं कहते। पेरिस में जिसने भी 130 लोगों को मारा है उसने बुरा काम किया, वो जहन्नुम में जाएगा। मैं इससे मुत्तफिक हूँ। लंदन ट्यूब ब्लास्ट में 50 लोग मारे गए, मैं उसको भी बुरा कहता हूँ। बॉम्बे में धमाकों से 180 लोग मरे, मैं उसको भी बुरा कहता हूँ। 9/11 में हजारों जाने गई, मैं उसको भी बुरा कहता हूँ। मगर साथ ही मैं अफगानिस्तान, इराक, शाम, मिस्र, लबनान और फलस्तीन में भी लाखों मुसलमानों के कत्ल को बुरा कहता हूँ। I condemn it. More than 50 people killed in the London tube bomb blast. I condemn it. More than 180 people killed in Bombay, the city where I stay, of serial train bomb blast. I condemn it. But in the same breath, I also condemn the thousands of innocent Afghanis killed in Afghanistan. I also condemn the thousands of Iraqi killed, the thousands of people killed in Palestine. I'm not trying to drift the topic. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया भर में कत्ले आम किया जा रहा है। कुछ खुद को मुसलमान कहते हैं, कुछ ईसाई, कुछ यहूदी, कुछ हिंदू कहते हैं, मगर मीडिया इस पर बात नहीं करता। मेरे नजदीक दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम हमले थे। लाखों लोग मरे, लाखों मुतासिर हुए। ये अमेरिका ने किए थे। हिरोशिमा के लोगों ने क्या किया था कि उनको मार दिया गया? इस्लाम में तो बाकायदा बताया गया है कि बूढ़ों, औरतों, बच्चों को जंग में भी नहीं मार सकते। इस्लाम ने तो जंग में दरख्त काटने की इजाजत तक नहीं दी, पानी के जखीरों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी। अफगानिस्तान में क्लस्टर बम फेंक दिए गए और हजारों अफगानी उसका शिकार बने। ISIS से मुतालिक मीडिया कहता है कि वो इंतकाम ले रहे हैं। अगर मीडिया का दावा सच है तो भी इसको हराम करार दिया गया है। बदला लेने के लिए किसी बेगुनाह की जान नहीं ली जा सकती। You cannot say that, okay, it was just collateral damage. What collateral damage? You are sending cluster bombs in Afghanistan, cluster bombs, to catch one man. Cluster bomb, and the bomb diffuses and multiple bombs comes and thousands of innocent Afghanis are being killed. For what? Just to catch one man? Is this justice?
जाकिर नाइक साहब ने डंके की चोट पर कहा कि अमेरिका भी गलत है, ISIS भी गलत है और मीडिया भी गलत है। सियासतदान ऐसी तंजीमों और लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इससे वो वोट लेते हैं। जो लोग बम गिराते हैं वो भी इस्लाम को नहीं जानते और जो लोगों को मारते हैं वो भी इस्लाम को नहीं जानते। मेरे और उनमें फर्क ये है कि मैं इस्लाम पर चल रहा हूँ, दूसरे लोग नहीं चल रहे। मीडिया को चाहिए कि वो किसी मजहब को बुरा न कहे और लोगों को चाहिए कि किसी मजहब के बारे में जानना है तो मुसलमानों को नहीं, कुरान पाक को देखें। आज अगर कोई हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताब लिख ले तो उसकी हर जगह पजीराई होती है। लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं, उसके कदमों में दौलत के ढेर लगा देते हैं। ये तासुब नहीं तो और क्या है। इस्लाम के बारे में लोगों को अपनी सोच क्लियर करनी चाहिए। ये दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब है और वाहिद मजहब है जो इंसानों को अमन सिखाता है और जंगों से दूर रहने की तलकीन करता है।